Okay, good morning class. Now this is your second part of your video. Okay, and we are dealing with the chapter human resource. So I have discussed in my last video that I will be sharing you with the factors affecting distribution of population. Geographical factors, we have discussed what are the geographical factors. So you have a topography, climate, soil, water, minerals. So these were your geographical factors. Okay, factors simply which affect your population differences or which affects your population distribution. So topography is basically dealing with the areas or a plain area or a mountain area. So in these areas your activities also differ. For example, in your plain area you do farming activities, in your plateau area you do your mining activities, and so on. So these areas also differ in their population. For example, Ganga Plain are the most densely populated as compared to your mountain area like Andes, Alps, which are the mountains in the world. Himalayas are sparsely populated. Sparsely मतलब बहुत ही कम population यहाँ पे देखी जाती है. Now again you have this climate. Okay, climate also affect your population, because if it is extreme cold, extreme warm, people will not be able to survive there. For example, Sahara desert, polar region, Russia, Canada, Antarctica, these area was partially populated, means population is there is very less. Soil also play a major role in a distribution of population. For example, all the Ganga plain area, Brahmaputra area were very heavily populated as compared to your other areas which is far from these fertile areas. If you take an example, that is Bundelkhand area, it is not specially populated as compared to your Allahabad, Lucknow, Kanpur, okay, these area, Varanasi. Water boundaries. Okay, water also play a major role for our population. You know, in our history, all of the area or all of the cities were developed near the water areas. So densely populated areas, especially in the river valleys area, for example Ganga, Yamuna, Brahmaputra, Kaveri, Krishna, Godavari. So these areas were mostly populated because they are near to the water area. Your Gomti area, your Rapti Nagar for your own state or for your own district. Minerals also play a major role for a distribution of population. If the minerals deposition are high in number or more in number, the population also be available in a huge numbers. So your South Africa, which is important for mines of diamonds, so they are very densely populated. So now we coming to the next factors which is responsible, that is your social, cultural and economic factor. Social means society which is dealing with housing, education, health facilities are densely populated area. For example, Pune. So Pune is a densely populated area. Why? Because the source of education, health facilities are available here. Okay, in this particular thing you have Bangalore also there. Okay, your Kerala is not now, केरला को आप इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं दे पाएंगे, बट स्टिल योर पुणे, बैंगलोर, नाउ डेज योर दिल्ली इज़ अवेलेबल फॉर योर पॉपुलेशन. ओके, यही यहाँ पे इसलिए इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है. अब आते हैं हम कल्चर की बात करते हैं. कल्चरल प्लेसेस with the religion and cultural significance attract people. Varanasi, Jerusalem, Vatican City are a most example here. So in this chapter your examples from India also and from world also. So Varanasi is famous for their cultural importance. You all know
जहाँ पे कहा जाता है वाराणसी में 80 घाट होते हैं। अगर आप कभी गए हो तो आपने सुना होगा। लोगों की इम्पोर्टेंस वहाँ से ज़्यादा है, उनके कल्चर्स बहुत ज़्यादा यहाँ से रिलेट करते हैं, रिचुअली इम्पॉर्टेंट है। वैसे ही जेरूसलम हुआ, वेटिकन सिटी हुआ, ये सारे एरियाज़ जो हैं कल्चर की वजह से डेंसली पॉपुलेटेड हैं। अब आते हैं इकोनॉमिक फैक्टर को जान लेते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर की वजह से कैसे आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा वहाँ पे सर्वाइव करती है। सो बिकॉज ऑफ इंडस्ट्री की वजह से, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी की वजह से लोग जो हैं उस एरिया में जाते हैं जहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा है। तो ऐसे एग्जांपल हैं आपके जापान का ओसाका, इंडिया में मुंबई, ये 2 डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं एशिया में। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर, दैट इज़ योर पॉपुलेशन चेंज. The population change. What is change? Change is which is permanent. चेंज आपको हमेशा दिखेगा। पास्ट में भी चेंज था, आज पे भी चेंज होते रहते हैं चीज़ें, और आगे के समय में भी चेंजेस होगा। तो चेंजेस क्या है? कंटिन्यूस प्रोसेस है और हम इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करते हैं। सो अब पॉपुलेशन चेंज क्या होता है? द पॉपुलेशन चेंज रेफर्स टू चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम। तो ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम में पॉपुलेशन कितनी चेंज हो रही है उसको आप कहते हैं पॉपुलेशन चेंज। द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ नॉट बिन स्टेबल। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप आज की टाइम देखें, कोरोना वायरस की वजह से पॉपुलेशन डिस्टर्बेंस हुआ, चेंजेस आए, जहाँ पे ज़्यादा थी वहाँ पे थोड़ा कम रेशो हुआ, यस और नो, एंड इट हैज़ इंक्रीज मैनी फोल्ड एज सीन इन फिगर 6.3। अगर आप 6.3 देखें, नीचे दिया हुआ है, तो देख लीजिए उसमें किस तरीके से चेंजेस हुए हैं सेंचुरीज बाय सेंचुरीज। दिस इज़ एक्चुअली ड्यू टू द चेंजेस इन द नंबर ऑफ बर्थ एंड डेथ रेट। अच्छा, ये चेंज किस वजह से आता है? ये चेंज आता है बर्थ रेट और डेथ रेट की वजह से, ठीक है। फॉर एन एक्सट्रीम लॉन्ग पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री अंटिल द 1800 सेंचुरी, द world population grew steadily but slowly. Large numbers of babies were born but they die early too. So 18th सेंचुरी के समय तक चीज़ें जो थी, यानी पॉपुलेशन जो थी वो इंक्रीज़ कर रही थी, लेकिन बहुत ही स्लोली एंड स्टेडली, मतलब धीरे धीरे और कांस्टेंट तरीके से। ये पूरा 18th सेंचुरी तक हुआ। क्यों? और उस समय जो बेबीज़ बॉर्न होते थे वो ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाते थे, और अगर सर्वाइव कर पाए तो वो पॉपुलेशन में जोड़े जा सकते हैं। लेकिन जो बच्चे बॉर्न हुए हैं और उनको फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती थी, उनको जितनी भी हाइजीनिक फैसिलिटी देनी चाहिए वो नहीं मिलती थी, तो वो जल्दी उनकी डेथ हो जाती थी, जिसकी वजह से पॉपुलेशन इतनी ग्रो नहीं हो पाती थी। तो इतना प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी उस समय नहीं था। तो सिग्निफिकेंट फूड वॉज नॉट अवेलेबल फॉर ऑल द पीपल। जितना लोगों को फूड का रिक्वायरमेंट था वो चीज़ अवेलेबल नहीं थी। Farmers were not able to produce enough to meet the production required for all the people. तो जो फार्मर्स हुआ करते थे वो भी इतना नहीं प्रोडक्शन कर पाते थे कि हम अपने सारे पॉपुलेशन को फीड कर पाएँ। एज अ रिजल्ट द टोटल इंक्रीज इन अ पॉपुलेशन वॉज वेरी स्लो। इसीलिए जो पॉपुलेशन का रेट था, यानी पॉपुलेशन की जो ग्रोथ थी वो बहुत ही कम थी ड्यूरिंग योर 1800 ईयर। Now, coming to the next paragraph, in 1804, the world population reaches to 1 billion. So, question can be arise, in what year that your world population reached to 1 billion? So, answer is 1804. 155 years later, in 1959, the world population reaches to 3 billion. दिस इज़ ऑफन कॉल्ड अ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन कहा जाता है क्योंकि एक साथ अचानक डबल हुआ है आपका पॉपुलेशन, तो एक एक्सप्लोजन हुआ है। जब कोई बॉम्ब या कोई एक्सप्लोजन होता है तो आप देखते हैं कितनी ज़्यादा चीज़ों का डिजास्टर होता है एक साथ, मतलब बहुत ज़्यादा भीषण, तो वैसी चीज़ें हुई। ड्यूरिंग योर 1919, 14 years later, the population doubled to 6 billion. So you can see population is multiplying. You can see population is multiplying. The main reason for the growth was that with the better food supplies and the medicines health and reducing, while the number of births still remain fairly high.
देन ये सब किस वजह से हुआ, क्योंकि आपकी जो फैसिलिटीज़ हैं उसमें चेंजेस देखने को मिले और वो भी पॉजिटिविटी देखने को मिली। अब हम कुछ और चीज़ें समझ लेते हैं क्या होती हैं। बोथ आर यूजली मेजर्ड ड्यूरिंग द बर्थ रेट एंड दैट इज़ द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पीपल। ओके, बर्थ रेट क्या होता है, हम बर्थ कैसे मेजर करते हैं, हम बर्थ रेट से मेजर करते हैं। अब बर्थ रेट क्या होता है, 1000 पीपल में जो नंबर ऑफ लाइव बर्थ हैं, आप 1000 पीपल लीजिए, उसमें से जो लाइव बर्थ हैं, ठीक है, जिनका सपोज 1000 बच्चे जन्मे हैं, उसमें से कितने बच्चे सर्वाइव कर पाए हैं, 1000 पीपल बच्चे लीजिए जो अभी जस्ट बॉर्न हुए हैं, उसमें से कितने बच्चे सर्वाइव कर पाए हैं, उनको आप कहते हैं बर्थ रेट। डेथ रेट क्या होता है, डेथ रेट मेजर किया जाता है नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पीपल। 1000 पीपल को लीजिए, उसमें से कितने लोग की डेथ हो गई, वही आपका डेथ रेट हो जाएगा। अब माइग्रेशन क्या होता है, माइग्रेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ पीपल इन एंड आउट ऑफ एन एरिया। माइग्रेट करना, आप कहीं किसी जगह से माइग्रेट करते हैं, आप यहाँ से वहाँ माइग्रेट करते हैं। अभी कोरोना टाइम पे लोग जो हैं, जितने लोग माइग्रेट हुए थे अपने उत्तर प्रदेश को छोड़ के कहीं और गए थे, या उत्तर प्रदेश के किसी और डिस्ट्रिक्ट में गए थे, तो वो माइग्रेट हो गए थे, कहीं गए थे, क्योंकि अपने कुछ मूवमेंट हुई जिसकी वजह से वो उन्होंने उस एरिया का पॉपुलेशन बढ़ा दिया और हमारे एरिया का पॉपुलेशन कम कर दिया। इसको इस नज़रिए से देखिए आप। बर्थ एंड डेथ रेट आर द नेचुरल कॉज ऑफ पॉपुलेशन चेंज। द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड डेथ रेट ऑफ अ कंट्री इज़ कॉल्ड अ नेचुरल ग्रोथ रेट। अब अगर कोई कहे कि बर्थ रेट और डेथ रेट जो हम मेजर करते हैं वो नेचुरल फिनोमिना है, ओके, ये नेचुरल फिनोमिना है, इसको आप किसी भी साइंटिफिक तरीके से या फिर किसी केमिस्ट्री की वजह से बढ़ा घटा नहीं सकते। ओके, बर्थ रेट और डेथ रेट का जो भी आंसर आता है या जो भी डिफरेंस होता है उसको आप कहते हैं नेचुरल ग्रोथ रेट। यानी कि आप दोनों को माइनस करिए, जो भी आंसर मिलेगा वो आपका नेचुरल ग्रोथ है, यानी कि ये चीज़ें इतना नेचुरल ग्रोथ हुआ, ठीक है। इसी तरीके से सपोज़ अगर आपके पास 50 पीपल जो थे वो बर्थ रेट है आपका, ठीक है, और उसमें से 100 पीपल जो हैं वो आपका डेथ रेट है, ओके, डेथ रेट है। अगर आप इसको माइनस करें 50 में से तो आपका क्या आएगा, बर्थ रेट में से क्या माइनस कर रहे हैं आप, बर्थ रेट में से आप क्या माइनस कर रहे हैं, डेथ रेट, ठीक है, और आंसर आएगा 50, और वो भी किस में आएगा, माइनस में, क्योंकि ये क्या है, निगेटिव में है। तो यानी कि आपका जो नेचुरल ग्रोथ हुआ है वो निगेटिव हुआ है, यानी कि कम हुआ है, जो कि कम भी नहीं कहेंगे, एकदम ज़ीरो से भी कम है, यानी कि आपकी कोई भी ग्रोथ रेट नहीं हुई है, उल्टा कम हुई है। समझ में आया बच्चे? The population increases in the world is mainly due to rapid increase in a natural growth rate. Population increase हम कब कहते हैं, जब ये आपकी नेचुरल ग्रोथ रेट होती है, तब हम अपने वर्ल्ड के पॉपुलेशन को कहते हैं कि ग्रोथ हुई है। तो हम सभी कंट्री का ऐड ऑन करते हैं और जब हमको चीज़ें मिलती हैं तो हम प्रीवियस ईयर के पॉपुलेशन से कंपेयर करके बताते हैं कि चलिए इस बार हमारा 3% या 4% ग्रोथ हुआ है। अंडरस्टूड? अच्छा, इस मैप की बात की जा रही थी, सॉरी इस फिगर की बात की जा रही थी, तो आप देख लीजिए बेटा 500 BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट में सिर्फ पॉपुलेशन कितनी थी और धीरे धीरे ये कितनी ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही है। तो इस टाइम पीरियड में तो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ था और अभी तो आप देख ही रहे हैं कि हमने इस टाइम इमेजिन कर लिया है कि 2015 तक हमारी पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी। तो आप देखिए, ओके, एंड इट इज़ इंक्रीजिंग, सो we can reach to this point. Okay, now coming to the next page, here your next page, okay, with the help of diagram it is given. ओके, कब आप कह सकते हैं कि पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुआ है, कब आप कह सकते हैं पॉपुलेशन डिक्रीज़ हुआ है, और आप कब कह सकते हैं कि पॉपुलेशन स्टडी है। स्टडी यानी कि ना ही कम हुआ है ना ही ज़्यादा हुआ है। तो बर्थ रेट मोर देन द डेथ रेट, तो पॉपुलेशन इंक्रीज है। ऑब्वियस सी बात है, अगर बर्थ रेट ज़्यादा है, बर्थ रेट अगर आपकी ज़्यादा है, ठीक है, देन योर डेथ रेट, और डेथ रेट कम है, तो ऑब्वियस सी बात है आपका पॉपुलेशन क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। सपोज़ बर्थ रेट भी ना कम हुआ ना ज़्यादा हुआ, डेथ रेट भी ना कम हुआ ज़्यादा हुआ, तो यानी कि चीज़ें क्या है, स्टडी है। सपोज़ अगर बर्थ रेट जो है वो कम हो गया, सपोज़ आज के टाइम का ही ले लीजिए, कोरोना वायरस की वजह से इतना पॉपुलेशन
हमारा कम हो गया है बिकॉज पीपल वर डाइड ड्यू टू कोरोना वायरस। और डेथ रेट जो है देखिए ग्रोथ रेट क्या हुआ, कम हुआ एज़ कम्पेयर टू बर्थ रेट, यानी कि बर्थ रेट जो है बर्थ रेट से ज़्यादा डेथ रेट हुई है, तो चीज़ें क्या हो जाएंगी और डिक्रीज हो जाएंगी, यानी कि बर्थ हुआ नहीं ज़्यादा बच्चों का और डेथ जो है लोगों की बहुत हुई है, तो इसकी वजह से क्या होगा, आपकी पॉपुलेशन डिक्रीज होगी। माइग्रेशन इज़, चलिए पढ़ लेते हैं हम दूसरी चीज़। माइग्रेशन इज़ अनदर वे टू बाय विच पॉपुलेशन साइज चेंजेस। माइग्रेशन भी एक कारण है जिसकी वजह से आपका पॉपुलेशन का साइज़ कम या ज़्यादा होता है। पॉपुलेशन में मूव विद इन अ कंट्री और बिटवीन द कंट्री, या तो आप सपोज़ उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं तो आप अभी सपोज़ गोरखपुर में, गोरखपुर से आप कानपुर गए तो इस मूवमेंट को आप माइग्रेशन कहेंगे, या आप इस मूवमेंट को भी माइग्रेशन कहेंगे। और सपोज़ अगर आप इंडिया में हैं और इंडिया से आप इटली जा रहे हैं तब भी आप इसको माइग्रेशन कहेंगे, क्योंकि आप अपनी जगह को छोड़ के किसी और स्टेट में या किसी और कंट्री में जा रहे हैं। अब इन दोनों के लिए अलग अलग एक नाम दिया गया है, अब वो सुन लीजिए। जब आप किसी और कंट्री में जाते हैं, ठीक है, जब आप किसी और कंट्री में जाते हैं उसको आप कहते हैं इमी माइग्रेशन, ठीक है। सपोज़ अगर आप यहाँ से दूसरे स्टेट में चल गए, ये इमी माइग्रेशन है। और इम माइग्रेशन क्या होता है, व्हेन अ पर्सन लीव्स अ कंट्री, जब आप पूरा का पूरा कंट्री लीव करके दूसरे कंट्री में जा रहे हैं तब आप उसको कहेंगे इमी माइग्रेशन। और अगर आप दूसरे स्टेट से घूम करके विद इन ही स्टेट में घूम रहे हैं, यानी विद इन ही कंट्री में घूम रहे हैं, तब आप उसको कहेंगे एमी माइग्रेशन, ठीक है। तो इसको आप समझ लीजिएगा, यही एक्सप्लेनेशन किया गया है यहाँ पे भी। कंट्री लाइक द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया हैव गेन्ड इन नंबर ऑफ इन माइग्रेशन और इमी माइग्रेशन। तो यहाँ पे आपको इन माइग्रेशन यानी कि विद इन कंट्री विद इन योर डिफरेंट कंट्रीज टू अदर कंट्रीज चीज़ें। Sudan is the example of a country that has experienced a loss in population of a number due to out migration और in migration। out migration होता है जब आप किसी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में जा रहे हो। in migration यानी कि आप किसी कंट्री में आ रहे हैं, ठीक है, इनको कहा जाता है। सपोज़ अभी जो लोग हैं मुंबई से यहाँ आए हैं उत्तर प्रदेश, यानी कि अपने एरिया में आए हैं, तो ये आप क्या कहेंगे इसको, इन माइग्रेशन। और कोई इंसान अपने एरिया को छोड़ के दूसरे कंट्री में या दूसरे स्टेट में जा रहे हैं तो उसको आप कहेंगे आउट माइग्रेशन यानी ई माइग्रेशन, ठीक है। द जनरल ट्रेंड ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन इज फ्रॉम द लेस डेवलपमेंट नेशंस टू द मोर डेवलपमेंट नेशन इन सर्च ऑफ बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी विद इन अ कंट्री। लार्ज नंबर ऑफ पीपल मे मूव फ्रॉम द रूरल टू अर्बन एरियाज इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटी। अच्छा, ये माइग्रेशन कहाँ देखा जाता है, ये माइग्रेशन देखा जाता है डेवलप टू मोर लेस डेवलप एरिया टू मोर डेवलप एरिया, यानी कि लोग जो हैं लेस डेवलप एरिया से मोर डेवलप एरिया में जाना चाहते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, एजुकेशन के लिए इम्पोर्टेंस है, हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंस है, ठीक है, आपको जॉब अच्छी मिल जाएगी। तो इन सारी चीज़ों के लिए लोग क्या करते हैं, मूव करते हैं, माइग्रेट करते हैं, ठीक। इसकी वजह से ही आपका पॉपुलेशन चेंजेस में आपका पॉपुलेशन चेंज दिखाई देता है। चलिए बच्चे, अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका दिस वन पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज हम पढ़ेंगे आपके पार्ट 3 में। सो कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच।